Good morning. Welcome to the thermodynamics, engineering thermodynamics. Okay, we have completed 4 lectures. Now we start with the unit lectures 5. Okay, in last lecture, we studied about heat, what is work, sign convection of heat and work. Okay, as you seen in figure, we define that when heat is supplied to the system, then it is taken as positive. When it is rejected by the system, then it is taken as a negative. For work, when system do work, then it is positive. When work is supplied to the system, then it is negative. Okay, the sign convention is very important for the numericals of first law of thermodynamics. Okay, next topic we studied about the work. What is work? Work is the force into displacement, that is a work. Okay, next we define the what are the similarities and dissimilarities between heat and work. Okay, heat and work both are inexact differential, that is defined by delta. And heat and work also properties of system. Okay, then the dissimilarities of heat and work also we studied. After that we studied the pdv work, that is a displacement work. Okay, when system moves from state 1 to state 2, okay, then the work is the pdv work or displacement work. That is we define w12 is the integration of v1 to v2 pdv. After that we define the specific heat, that is amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of gas by 1 degree Celsius. That amount of heat is called as specific heat. If this heat at constant volume, then it is specific heat at constant volume. If this heat at constant pressure, then it is a specific heat at constant pressure. This is the specific heat. After that we studied various types of energy. That is the energy, that is a capacity to do work. Energy are two types, that is energy are of two types, that is transient energy and stored energy. Transient means the energy which crosses the boundary, and stored energy which is within the system, that is the stored energy. Transient energy, that is heat and work. Stored energy, that is a kinetic energy, potential energy, internal energy, that is a stored energy. Okay, so we define the energy, potential energy, what are the kinetic energy, what are the internal energy. Okay, after that we studied enthalpy. What is enthalpy? Enthalpy is designated by term capital H. Okay, and it is equal to internal energy plus product of pressure into volume. Okay, that is the enthalpy. Capital H is equal to capital U plus pressure into volume. Okay, that is the enthalpy. If we this relation put in specific enthalpy, as you seen, specific enthalpy, that is small h, is equal to specific internal energy small u plus pressure into specific volume, that is small v. Okay, this is the relation for specific enthalpy. If we put normal enthalpy, then relation is h is equal to capital H is equal to capital U plus product of pressure into volume. After that we study law of conservation of energy. The energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to another form. Okay, these are the energies we are studying in previous lecture. Now next session we studied about the basic term temperature. Normally, what is temperature? Temperature means it is the degree of sensible heat or cold expressed in specific scale. Means what? Temperature is defined as degree of hotness or coldness of body. Means what? We define temperature, that is the temperature is the degree of sensible heat. Okay, now temperature, which instrument is used to measure the temperature? You all know that thermometer, which is used to measure the temperature. Okay, कोई भी टेम्परेचर है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. आपने बहुत बार थर्मोमीटर को देख लिया होगा. तो थर्मोमीटर कैसा रहता है? एक ग्लास ट्यूब रहती है, उसके अंदर क्या रहता है? मर्क्यूरी रहते हैं, और नीचे एक क्या रहता है? बल्ब रहता है. ओके, और जो ट्यूब रहती है उसके ऊपर क्या रहते हैं? स्केल रहते हैं. जब भी उस बल्ब को हम बल्ब की जब कांटेक्ट में आ जाता है एयर वगैरह जिसका टेम्परेचर मेजर करना है,
तो मर्क्यूरी लेवल क्या हो जाती है, ऊपर और नीचे हो जाती है। जैसे ही हमें उसका क्या मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। ओके, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने को पता चली। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो टेम्परेचर के यूनिट्स क्या है? अभी टेम्परेचर के जनरल यूनिट्स जो है वो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ओके, 3 टाइप के हम यूज़ करने वाले हैं। डिग्री सेल्सियस आपको नॉर्मली पता है टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, आप सबको पता है। तो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एक स्केल है, टेम्परेचर का स्केल है। दूसरा जो स्केल है वो केल्विन एज अ स्केल यूज़ करते हैं। थर्ड जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट, जो कि हम यूएस में जो है, यूनाइटेड स्टेट में जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए स्केल, उसको यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट। लेकिन कॉमनली सब जगह क्या यूज़ करते हैं, हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। ओके, तो दीज आर द टेम्परेचर स्केल्स। हम एक एक स्केल्स पढ़ने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट स्केल है अपना सेल्सियस स्केल। आपको पता है वाटर कब फ्रीजेस होता है, मतलब वाटर कब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में। वाटर कब बॉयल हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में। तो सेल्सियस जो है जनरली कॉमनली यूजर टेम्परेचर है। ओके, इट्स 0 पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस वॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो अर्थ का अभी प्रेशर है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, 1.013 बार। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 10.33 mm ऑफ वाटर, 10.33 मीटर ऑफ वाटर। ओके, आपको BME में हो गया होगा, सॉरी SME में। ओके, तो दिस आर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स वैल्यू। ओके, 1.01325 बार, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। जब भी आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा तो आपके जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स है वो भी चेंज हो जाएगी। अभी जो मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, लेकिन वो कौन से प्रेशर के लिए है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। जब भी आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा दिस वैल्यूज आर आल्सो चेंज। ओके, नॉर्मली हमने जो बोल रहे कंडीशन वो एटमॉस्फेरिक के लिए है। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आपका फ्रीज हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सेल्सियस स्केल। अभी नेक्स्ट स्केल के लिए चले जाते हैं हम, फ़ारेनहाइट स्केल। अभी जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो इंडिया में नहीं यूज़ करते। वो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, द यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट में जो स्केल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। अभी फ़ारेनहाइट स्केल कैसा रहता है, सेम रहता है, सिर्फ वहाँ पे जो नोटेशन रीडिंग्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। जैसे कि अपना वाटर फ्रीज कैसे होता है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो फ़ारेनहाइट स्केल के हिसाब से वाटर फ्रीजेस लेवल कितने पे होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर बॉईल कब हो जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मतलब हमारे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट के हिसाब से, ओके, उनके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो कितने डिग्री के लिए होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, जो कि उनका क्या है, स्केल है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। मतलब अपना 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। ओके, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए क्या है, सॉरी फ़ारेनहाइट के लिए क्या है, तो मैंने नीचे बताया है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको टैली करना है तो पुट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के लिए बॉयल वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पुट की तो क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 32, मतलब कितना आया, 32। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इतना कितना आया, 32 फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस वी गेट 212 फ़ारेनहाइट। ओके, दिस इज द सेकंड स्केल, दैट इज अ फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड केल्विन स्केल। ओके, अभी जनरली केल्विन स्केल है जो साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, केल्विन टेम्परेचर स्केल। ओके, अभी केल्विन टेम्परेचर स्केल जो रहता है, मतलब क्या होता है, हम भी जब
डिग्री सेल्सियस की केल्विन में वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ती है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर कहीं पे पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तो उसका केल्विन में कितना आ जाएगा 273 केल्विन। मतलब जो भी आपका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसमें आपने प्लस 273 कर दिया तो वो आपका रीडिंग किस में आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर कंसिडर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में कितना आ जाएगा 283 केल्विन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका केल्विन स्केल हो जाएगा। ओके, तो ये अपना केल्विन स्केल है जहाँ पे आपको क्या होने वाला है उसका डिग्री सेल्सियस का हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, केल्विन के कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स व्हाट, मैक्सिमम कोल्डेस्ट पॉइंट टेम्परेचर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम कोल्ड कर रहे हैं -1 -2 तो मैक्सिमम कितने तक जा सकता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब रीडिंग कैसे आ रही है अभी हम कैलकुलेट करते हैं 10 डिग्री आ रहा है, कभी -10 आ रहा है, -20 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट जीरो कब हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कोल्डेस्ट टेम्परेचर। मैक्सिमम कोल्डेस्ट टेम्परेचर जहाँ से क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से अपना टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। अभी वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब मिलता है तो उसके वैल्यूज़ है, अगर केल्विन के हिसाब से देख लोगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपको मिलेगा 0K। कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, 0K। 0K मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वो हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाती है 0K और -273 डिग्री सेल्सियस। अभी ध्यान में रखिए -273 डिग्री सेल्सियस मतलब कौन सा टेम्परेचर होगा, कितना कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा, वही हो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दैट इज 0K और -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज अ जीरो स्केल। ओके, 3 स्केल्स देख लिए हमने। पहले तो देख लिया टेम्परेचर क्या है, उसके बाद स्केल कौन कौन से है वहाँ पे। एक तो आपका डिग्री सेल्सियस है, सेकंड आपका फ़ारेनहाइट स्केल है और थर्ड है अपना केल्विन स्केल। ओके, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस के लिए वाटर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए बॉयल हो जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल जो कि यूनाइटेड स्टेट में यूज़ किया जाता है उसका जो रहता है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज फ्रीजेस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट that is water boils. Okay, after that we studied Kelvin scale. Next we studied absolute zero temperature. Okay, maximum coldest that is a start of the temperature that is 0K and or minus 273 degrees Celsius, that is a absolute zero temperature. Okay, these are the scales of temperature. Next, temperature is measured which instrument use, that is a thermometer or pyrometer. Okay, thermometer used for lower temperature and pyrometer instrument which is used up to measure higher temperature. Okay, various temperature measurement instruments use RTD. Okay, or various thermocouples. Okay, that are instruments used to measure thermometer. Okay, we studied for constant volume gas thermometer. Okay, as you know that constant volume, okay, you studied in ideal gas. Okay, that is a PV equal to MRT. Okay, when we put constant volume then pressure is directly proportional to temperature. As the pressure increases temperature also increases. Okay, example दे देता हूँ, टायर। ओके, टायर में आप इंधन में एयर पुट कर देते हैं, जब आपकी गाड़ी हाईवे पर रन हो जाती है बहुत टाइम तक तो गाड़ी का क्या हो जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, टायर का क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बराबर है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो टायर के अंदर का जो एयर है उसका क्या बढ़ने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टायर तो कांस्टेंट रहेगा। बराबर है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बाद में क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर होने के बाद वो क्या होगा, टायर बर्स्ट हो सकता है, मतलब टायर फूट सकता है। बराबर है, आपको एग्जाम्पल आपको पता होगा कि हाईवे पे टायर बर्स्ट होने से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन क्यों हो जाता है, तो क्यों कि वो टायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और अपना आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV इक्वल टू MRT। ओके, अगर उसमें से M तो कांस्टेंट है, R तो अपना क्या कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पुट कर दिया तो क्या आ गया, P इक्वल टू 2, दैट इज P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस pressure also increases. Okay,
So similar concept is used in constant volume gas thermometer, okay, in which temperatures are measured, okay. The construction and working as shown in figure, okay. इन दिस फिगर आप देख सकते हैं एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है जहाँ पे हमने ए दिखाया है और एक बी दिखाया है। तो राइट लिम आपके राइट साइड वाला क्या है, बी है, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, आपका मैनोमीटर ए है, ओके। ए और बी में हमने क्या पुट किया है, मर्क्यूरी पुट किया है। क्या पुट किया है, मर्क्यूरी पुट किया है, ओके। अभी यहाँ पे जो मैंने बताया है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, तो गैस कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक कंटेनर में मैंने एक अपने ट्यूब प्रोवाइड किए, वहाँ पे मैंने क्या किया, एक गैस प्रोवाइड किया है, ओके। तो उस गैस का हमें क्या करना है, प्रेशर देखना है। अभी वो जो गैस है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी अगर कोई टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, जनरली एक्सपांड हो जाता है। अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, ओके। तो इसमें जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, अपना कांस्टेंट है, ओके। अभी वो जो गैस है जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके हिसाब वहाँ पे क्या करना है, उसको कांटेक्ट करना है। अभी मैंने एग्जांपल में एक बात लगा है, वाटर पुट किया है, उसका मुझे टेम्परेचर मेजर करना है। तो वाटर को मैंने क्या किया, उस गैस को कांटेक्ट में लेके चला गया। अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर वाटर का टेम्परेचर कम होगा तो गैस क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, ओके। उस हिसाब से मुझे क्या करना है, अंदर वाला रिलेशन यूज़ करना है। अभी कैसे यूज़ करना है, वर्किंग कैसा है, पहले तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक यूट्यूब मैनोमीटर है, उसकी राइट लिम में बी दिखा है आपको, मर्क्यूरी है, ए में भी क्या है, मर्क्यूरी है, और दो जो अपना मैनोमीटर है ए एंड बी, उसको कनेक्टेड मैंने क्या किया है, एक फ्लेक्सिबल होस से कनेक्ट किया है। मतलब ए एंड बी को कनेक्टेड कैसे किया है हमने, फ्लेक्सिबल होस। मतलब क्या रहते हैं, होस मतलब क्या रहते हैं, पाइप रहती है, ओके, जो कि फ्लेक्सिबल रहती है, उसको होसेस बोलते हैं, ओके, रबर से बनाई हुई, ओके। तो उसको होस है, उसको कनेक्टेड किया है, दोनों में मर्क्यूरी है ए एंड बी में, ओके। बीच में मैंने एक स्केल प्रोवाइड किया है, ओके। स्केल में रीडिंग देखो 0 है, और ए में जो मर्क्यूरी है उसकी लेवल कितनी पुट की है मैंने, 0, ओके। अभी इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपका गैस एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मर्क्यूरी लेवल क्या होगी, चेंज होगी, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, जो मर्क्यूरी लेवल ए है, ओके, ए में जो मर्क्यूरी लेवल है 0 पे दिखाई है, उसको मुझे क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन करना है। क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर ए की मर्क्यूरी लेवल मुझे कांस्टेंट मेंटेन करनी है तो बी की जो मर्क्यूरी लेवल है वो क्या होगी, एक तो ऊपर जाएगी, नहीं तो एक तो क्या आएगी, नीचे आ जाएगी, बराबर है। अगर ऊपर और नीचे गई तो जो डिफरेंस आएगा हाइट का, ओके, जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में दिखाया है 0, और इसमें जो मर्क्यूरी का डिफरेंस आएगा वो मुझे क्या करना है, मेजर करना रहे, ओके। तो उस हिसाब से मुझे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हेल्प हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी जी एंड एच, रो जी एच, ओके। तो इसमें क्या करना है, जब भी आपका गैस यहाँ पे जो है उसको क्या करना है, पहले तो कांटेक्ट में लाना है जिसका टेम्परेचर मेजर होगा। गैस एक्सपांड और कांटेक्ट हो जाएगा जिस हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, अंदर का गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या करना है, मुझे कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो कांस्टेंट मेंटेन करना है मतलब क्या करना है, ए की जो मर्क्यूरी लेवल है वो 0 पे ही पुट करनी है कॉन्स्टेंटली। तो जो मर्क्यूरी लेवल चेंज कहाँ होगी, मेरी बी के रिजर्वायर में जो मर्क्यूरी क्या हो जाएगी, अपनी चेंज हो जाएगी, ओके। तो मैं वहाँ से क्या कैलकुलेट करूँगा, प्रेशर कैलकुलेट करूँगा। अभी प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर में हमने प्रेशर कैलकुलेट किया है फर्स्ट ईयर में, फिर भी बताता हूँ। अभी प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट साइड, ओके। अभी स्केल का इधर साइड कौन सा हो गया, लेफ्ट, और इधर साइड कौन सा हो गया, अपना राइट, ओके। अभी लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ गैस है, तो मुझे प्रेशर किसका मेजर करना है, गैस। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में क्या क्या आ रहा है, ऊपर से देखो, राइट साइड में बी वाला जो आपका मैनोमीटर है ओपन है, मतलब ओपन से जो प्रेशर इम्पैक्ट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर इम्पैक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक। तो उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक। सेकंड क्या आएगा, जो मर्क्यूरी डिफरेंस है उसका एक प्रेशर आ जाएगा, रो जी एच, बराबर है।
मतलब राइट साइड में दो प्रेशर आ गए, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया और दूसरा मर्क्यूरी डिफरेंस वाला प्रेशर आ गया, बराबर है। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ओके, कैलकुलेशन में अभी दिखाता हूँ आपको, नीचे देखो, आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस, सॉरी वहाँ पे प्लस है, पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, सी पी, दैट इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, दो टेम्परेचर्स लिए हैं, एक तो हमें जो मेजर करना है और दूसरा जो T3 दिखा रहा है वो रहता है आपका ट्रिपल पॉइंट। अभी ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, द ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या है, आपको पता है तीन फेजेस रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या है, जो कि आपके तीनों फेज रहते हैं इक्विलिब्रियम में, मतलब वो सॉलिड में भी नहीं है, लिक्विड में भी नहीं, गैसेस में नहीं, तीनों फेज क्या मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। हर एक गैस के ट्रिपल पॉइंट के वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं। कंसिडर कर दिया वाटर, तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट रहता है 0.001 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, सिमिलरली वी गेट डिफरेंट ट्रिपल पॉइंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रिपल पॉइंट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हमने जो भी यूज़ किया है उस हिसाब से हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट मिलने वाले। तो ट्रिपल पॉइंट का आपको टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट का आपके पास प्रेशर है। अभी मैंने जो प्रेशर मेजर किया वो प्रेशर है, तो मुझे क्या मिलेगा, टेम्परेचर ऑफ जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसका क्या मिल जाएगा, हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, इस हिसाब से हम क्या मेजर करने वाले हैं, टेम्परेचर, बाय यूजिंग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट जो है अपना मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, नॉर्मली है, इस जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो भी आपका एयर का टेम्परेचर है उसके मेजर करने के लिए हम मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं, एक तो आपका सेल्सियस स्केल में है और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल में है। नॉर्मल है, प्रिंसिपल है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मतलब जो अंदर की मर्क्यूरी है वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। जब भी टेम्परेचर कांटेक्ट में आ जाएगा लो वाला तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो उस हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है। नीचे क्या है, बल्ब है, आप देख सकते हैं नीचे बल्ब है, उसको जब कांटेक्ट में आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंट, तो अंदर वाली जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी लेवल अप और डाउन हो जाएगी। उस हिसाब से हमें क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। ओके, टुडे वी दिस complete this lecture. Next lecture we start with the first law of thermodynamics and numericals on first law of thermodynamics. Okay, so tomorrow lecture is very important to start the topic first law of thermodynamics and numericals on first law of thermodynamics, which is very important, okay, for your in semester examination. Okay, thank you.